My name is Dr. Asma Ibrahim. I'm a museologist, conservationist, and an archaeologist. And I started my career from writing children course books, class 4 and 5 for Forreston publications. And then I was a journalist for some time till the Department of Archaeology accepted me as a woman archaeologist to join the Department of Archaeology. So then I joined Department of Archaeology in 1990. I worked there for about 20 years and then I joined State Bank of Pakistan to establish the first monetary museum of Pakistan. And in the meantime, I have this NGO of mine, Sindh Exploration and Adventure Society. So my PhD is in coins and my postdoctorate is in archaeological chemistry. I was a Fulbrighter and I work on ancient human remains. We need to learn about our heritage or our background. We need to save our past. Unless we save our past, we cannot work on the future. So this shows that how advanced we were in the past and how we should proceed. हाई नंबर ऑफ़ फोर्ट्स इसलिए है क्योंकि जब भी आप समंदर के किनारे या दरिया पे जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो नॉट ओनली थ्रू लैंड यू गो थ्रू सी और वाटर तो हर दुनिया में हर जगह पे आप देखें तो दीज फोर्ट्स आर देयर एट द वाटर फ्रंट क्योंकि एक तो ट्रेडिंग दूसरा सिक्योरिटी के लिए सो ये जो फोर्ट्स हमें मिल रहे हैं देर आर रेजिडेंशियल फोर्ट्रेसेस एंड देर आर ट्रेडिंग फोर्ट्रेसेस एंड प्लस सिक्योरिटी के लिए भी हैं और इतने ज़्यादा क्यों हैं बिकॉज एज यू नो दैट इंडस डेल्टा चेंजेस इट्स रूट और कोर्स silt आ रही है due to climate change, due to pollution. It's very quickly disappearing. If you see the data that how quickly the delta is disappearing, it's quite alarming. तो उस ज़माने में भी यहाँ पर fortresses बनाने का यही मकसद था. Number one, trading. ट्रेड करते थे वो लोग थ्रू सी विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नॉट ओनली इस्लामिक बट प्री इंडस टाइम्स ट्रेडिंग हो रही थी to Middle East and Egypt and Rome and these areas, Far East. So this was another reason that there were a lot of forts. Rattukot का ये कि that was my first ever excavation in 1990. When I joined the department, the ladies were not allowed to go in the field. So in fact, I was the only lady officer there. तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया था तो by chance Monique Cavron, the French archaeologist, she was a lady, she came to Pakistan. She wanted to excavate at Bambor actually. Her dream was to excavate at Bambor. तो हमारे डीजी ने उसको परमिशन नहीं दी उन्होंने कहा पहले आप जाओ पूरा एक्सप्लोरेशन करो फिर आपको हम परमिशन देंगे सो वी डिड द एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडस डेल्टा एंड वी केप्ट ऑन डूइंग इट from 1989 for 15 years. We did the explorations of Indus Delta with Monique and Dr. Lashari. During exploration of the first year, we thought that Rattokot is very, very important. और दूर से नज़र आता था Red Fort in the Delta. So we were curious to see that and to work on that. तो फिर we planned the excavation there. रत्तो उसको इसीलिए बोलते हैं कि वो रेड है तो फिर हम लोगों ने प्लान जमा कराया वी गॉट द परमिशन सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज सुबह हम लोग 4 बजे शुरू होते थे घर से इब्राहिम हैदरी जाते थे फिर हम बोट लेते थे 4 आवर्स बोट की राइड थी फोर्ट्रेस पे पहुंचते थे फिर हम जैसे बोट बिल्कुल यूँ सीधी खड़ी हो जाती थी बिकॉज ऑफ सिल्ट तो फिर वी यूज़ टू जंप इन द वाटर एंड पूरे गीले होकर सर्दी में I think 1 hour we used to walk to the fortress and then excavate with wet clothes and nothing around. So this was just and Monique told me she was at that time 53 years old. She said this is my toughest excavation. So and yours is the first one. So if you survive this excavation, you will be an archaeologist. I can guarantee. But I was really excited to do that. But it was a difficult site to excavate क्योंकि एक तो पानी नहीं कुछ नहीं खाने पीने को भी नहीं मिलता था फिर थोड़ा सा हम खोदते थे तो पानी निकल आता था इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट तो वी excavated there for about 1 month. Daily we used to go there. We couldn't stay there. तो डेली जाना आना और पाँव बिल्कुल ज़ख्मी हो गए थे बिकॉज ऑफ शेल्स जो टूटे हुए होते हैं और नंगे पाँव चलना होता था जूता तो अंदर ही कहीं चला जाता है अगर जाते जूते के साथ तो this was one of the I think most exciting excavations I did and I'm glad that we could excavate to some extent and we could estimate the date of the fortress. It is Sasanian time period
पॉटरी से जो हमें पता चला, प्लस द आर्किटेक्चर ऑफ द फोर्ट्रेस टेल्स अस दैट इज़ वन ऑफ द fortresses of Sasanian time period जिसके इतने टावर्स थे. द टावर्स वर एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग फॉर अस ना. तो हमने उनको एक्सपोज किया. फिर गेटवे नहीं मिल रहा था. फिर गेटवे के लिए वी हैड टू रियली वर्क हार्ड बिकॉज बहुत सारा ऊपर माउंट बना हुआ था उसके, जिसको हमने खोला. तो वो एक चीज़ थी. स्टिल वी वर नॉट श्योर अबाउट द गेटवे एंड वी thought that this could be the only gateway. So this excavation was a bit difficult, but I'm glad we could do that. And it dates up to the 13th century. फिर हमें पोर्सिलेन भी मिल रहा था वहाँ पर, तो इसका मतलब कि वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी 13th century तक. फिर उसके बाद वो अबंडन हुआ ड्यू टू चेंज ऑफ डेल्टा. गूगल हिस्टोरिकल सोर्सेज में भी इसके 2-3 नाम मिल रहे हैं ना. तो मेरा ख्याल है कि ये डायनेस्टी के हिसाब से वो लोग इसको चेंज कर रहे होंगे. मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, बट जैसे ये 2-3 मुग़ल डायनेस्टीज़ को देख चुकी है ना ये साइट, तो जो हमें उसमें एविडेंस मिल रहा था टाइल्स का और आर्किटेक्चर का, उसके हिसाब से ये एक बादशाह के ज़माने तक तो नहीं थी. तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने चेंज किया होगा, या जो लोकल लोग हैं उसको लहरी बंदर बोलते होंगे, और वो जूना शाह तो इज़ वन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द मुग़ल, तो उसके हिसाब से था. तो इसके 3 नाम हैं. ये बड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए भी शुरू में. फिर जब हम उधर एक्सकवेशन पे गए तो उधर से भी हमें कोई ज़्यादा इसका हिस्टोरिकल सोर्सेज में रेफरेंस नहीं मिला कि इसके 3 नाम क्यों हैं. वी थॉट कि देयर कुड बी अनदर फोर्ट्रेस इसके साथ साथ, बट हमें नहीं मिला था वहाँ पर कोई और फोर्ट्रेस. ये ही खुद बहुत बड़ी साइट है ना. और 16-17 सेंचुरी तक हमें टाइल्स के पैटर्न्स मिल रहे हैं, खूबसूरत हमाम हैं, और अंदर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है. ग्लेस टाइल्स मिल रहे थे, और पॉटरी भी बहुत खूबसूरत मिली है इधर से. सो दिस वाज वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट फोर्ट्स विच वी एक्सकवेटेड. मगर फिर वी कुडंट गो डाउन मच बिकॉज वही सेम चीज़ के पानी आ जाता ना उधर भी. ये था. और पोर्सिलेन है तो फिर हमें ये भी पता चला कि ट्रेडिंग था चाइना के साथ. पोर्सिलेन भी मिल रही है 13th सेंचुरी की, बट इट वाज ऑक्यूपाइड टिल 16-17 centuries I believe. This again I excavated with Monique. और इसमें ये अच्छा था कि बोट बिल्कुल जाकर उधर ही लग जाती है ना. We just had to jump and reach the fortress. तो यही सेम एक्सपीरियंस था जैसे डेल्टा में हमारा पहले हुआ था रत्तो कोट का. It was difficult. Monique was frustrated. We were frustrated. It's very difficult because इस साइड पे पानी ले जाना, खाना ले जाना बहुत मुश्किल होता था, और इतनी बड़ी टीम होती थी. और फिर हमने उसको काइट से डॉक्यूमेंट किया. अच्छा, रत्तो कोट के टाइम पे हमारे पास काइट नहीं थी. फिर जब हम जूना शाह बंदर पे आए हैं 2-3 साल के बाद, तो वहाँ हमारे पास काइट थी, तो हमने उसको डॉक्यूमेंट किया है ना, एरियल व्यूज़ का लिया है साइट का. तो दैट वाज इंटरेस्टिंग बट very difficult to run around with the kite and document that. अब तो ड्रोन आ गया है ना, तो उस ज़माने में काइट होती थी. We were happy that we could see that structure with tiles, beautiful tiles, you know. So while we were working on the Thambanwari mosque, we were documenting that mosque because that was also crumbling very quickly, और I think अभी तक तो disappear हो चुकी होगी ना. तो local people came to us with these complete pots which were really interesting, और shape भी interesting था, and definitely they were from earlier period. They were not from the graveyard on top of it. So we went there and then we investigated. बट बिकॉज ये साइट बिल्कुल कवर हो जाती है पानी से, तो 1-2 घंटे के बाद सुबह के बाद, तो इट टुक अस सम टाइम टू गो इनटू द डेप्थ कि ये क्या है. फॉर मैनी मंथ्स वी विजिटेड दैट साइट एंड वी सॉ कि जब वो सिल्ट पीछे जाती है तो दे वर आउटलाइन ऑफ फोर्ट्रेस और काइंड ऑफ अ फोर्ट्रेस. उस वक्त हमें कंफर्म नहीं था, तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर काम शुरू किया. और that was very exciting because it was not in any of the historical sources. Even Ibn Battuta भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं. It's not mentioned anywhere in any historical sites. So that was very interesting, and it was before Bambor, and it was relating to the historical references कि बम्बोर और देबल जो है वो अलग अलग फोर्ट थे ना. बम्बोर से जो हमें डेट मिल रही है कि वो अबंडन हो गया था. फिर मुझे वहाँ से एक पैनल मिला. ये तो हमने वी स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग, स्टार्टेड मेकिंग द आउटलाइन ऑफ वो. थोड़ा सा सिल्ट हटा के ऊपर इसकी कब्रिस्तान था पूरा ना. तो वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी देयर वाज अ बिग फोर्ट
mosque, small mosque, and then we discovered a kiln also. So that means that this was a whole city, शहर था ना, बट हमें कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा था और अभी तक नहीं मिला है। और वी couldn't excavate it बिकॉज वो तो पानी के अंदर चला जाता है, सो 2 घंटे के लिए नज़र आता है। सो द ओनली सोल्यूशन वी हैड वाज दैट वी जस्ट डॉक्यूमेंट इट एंड पब्लिश इट, मे बी वी फाइंड द रेफरेंस लेटर ऑन। तो फिर जो हमें वहाँ से फोलिएटेड कोफिक मिला है वो हमें 13 और 14 सेंचुरी का है, सल्जूक पीरियड का है। सो व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज सल्जूक पीरियड का हमें कोई रेफरेंस पाकिस्तान में नहीं मिल रहा था ना पहले। तो फिर देन वी वेंट देयर, वी got this plaque, we studied that, and it was actually Seljuk period and how it came here. So that means that it was a big mosque, it was on the facade. And few years later when we went back and we got another piece of that facade which is in Islamabad Museum. So that actually was created very excitement और हम लोग फिर हमने सोचा कि अब हमें भंबोर को दोबारा एक्सकवेट करना है बिकॉज जब शुरू में भंबोर एक्सकवेट हुआ है तो सिर्फ एक 40 पेजेस का एक मोनोग्राफ है विच इज़ नॉट गिविंग अस मोर डिटेल्स। तो हमें ये कंट्रोवर्सी जो है भंबोर और देबल की जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, कुछ लोग उसको भंबोर भी बोलते हैं, देबल भी बोलते हैं, बट वी वर प्रिटी श्योर कि भंबोर अलग था और देबल अलग था। व्हेन वी वेंट फॉर एक्सकवेशंस, साइंटिफिक एक्सकवेशंस एट भंबोर, तो जाम जस्कर का ये है कि अभी तक वी हैवंट बीन एबल टू further investigate because of our being handicapped, वो पानी के अंदर चला जाता है, तो we don't know, but we were able to document it completely, जो नज़र आ रहे थे स्ट्रक्चर्स। अब आई एम नॉट श्योर कि वो अभी भी नज़र आते हैं या नहीं। जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं हमें वो 14th सेंचुरी तक कहते हैं कि देबल थी। तो लाइक वी फाउंड ऑल दीज फोर्ट्रेसेस, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि मे बी देर आर मोर फोर्ट्रेसेस हु आर जस्ट सबमर्ज्ड अंडर द सॉइल सिल्ट। हमें फर्दर काम की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ना वहाँ पर। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट टू प्रूव कि दिस वॉज देवल एंड दैट वॉज भंबोर। अभी चल रहा है उसका काम। तो भंबोर से मेरा रिलेशनशिप जो है वो बहुत पुराना है, 1990 से, व्हेन आई वाज इन द एक्सप्लोरेशन ब्रांच। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द पॉटरी ऑफ भंबोर। जब मैं एक्सकवेशन नहीं कर सकती थी तो आई वेंट टू द स्टोर्स ऑफ द भंबोर, जहाँ पर 1958 और 65 तक जो एक्सकवेशन हुई थी उसका पूरा मटेरियल था। सो उसके बैग्स गल गए थे, वहाँ सांप थे, बिच्छू थे बहुत, मतलब स्टोर रूम्स यू कुडंट एंटर। तो आई टुक आउट द होल पॉटरी, आई एक्चुअली रीडॉक्यूमेंटेड द होल थिंग, नए बैग्स बनाए। फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया था भंबोर में, तो वी स्टार्टेड एक्सकवेटिंग एंड दैट वाज रियली एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू री एक्सकवेट भंबोर। तो ऑलरेडी एक्सकवेटेड थी ट्रेंचेस, उनको हम थोड़ा सा ट्रिम ऑफ करके, फिर ट्रिम करने से ये हुआ कि हमें दोबारा से डिफरेंट स्ट्रेटा से वो पॉटरी मिलनी शुरू हो गई। वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी कि ये बनी किस पे है, रॉक है या सॉइल है, विच वॉज द मेजर क्वेश्चन फॉर ऑल द साइट्स एट इंडस डेल्टा, कि इनके नीचे रॉक है या नहीं। बिकॉज जो थारो हिल का मैं बता रही हूँ उसके नीचे भी रॉक है, बट दैट्स वाई वी नीड टू एक्सकवेट दीज फोर्ट्रेसेस अगेन। बट हमने भंबोर पे फिर इसलिए भी एक्सकवेट किया, मॉस्क जो थी वो इन्होंने जब कॉन्कर किया है मोहम्मद बिन कासिम ने, देन ही कन्वर्टेड दिस एरिया इनटू अ मॉस्क।